if we assigns a final keyword to variable, then the initial value will be considered as a final value. We cannot be able to reinitialize the value for final variable. ये आप लोगों को याद रखना है guys. This you need to keep it into your mind. Then next thing guys, नेक्स्ट जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है दैट कि अगर मैंने किसी मेथड को फाइनल बना दिया, अगर मैं किसी मेथड को फाइनल बना देता हूँ, इफ दैट मेथड इज अ फाइनल, अगर मेथड फाइनल बना दिया तो दैट मेथड गाइस मेथड कैन नॉट बी और मेथड won't be able to override, वो मेथड ओवरराइड नहीं होगा. We restrict that method to be override by another method. that you need to understand everyone. ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है. So this is very important again. And third thing guys, if you are keeping this final variable with any class, अगर क्लास के लिए लगा दोगे तो क्या हो जाएगा. So if you made any class as a final, that final class won't be able to inherit, right? Inherit नहीं हो सकता guys. That won't be able to inherit, or you restrict it from overriding its from inheriting its property into the another class. So that is very important question guys. ये final keyword है. Then there are relevant guys, इसके related कुछ keywords हम लोगों को देखने हैं. ये आपका final keyword हो गया. After the final keyword there is a this keyword guys. ये this keyword भी हमने देखा था, right everyone? Am I right guys? Yes. This keyword. So this keyword का क्या काम होता है? There are different uses of this keyword, but इसका major work है guys. हमेशा याद रखो इसका definition this keyword का. So this keyword okay, फिर से आ गया ये this keyword all right. This keyword specifically guys, this keyword points to the current class property. current class के properties को point करता है. This keyword points to the current class properties. इसके बहुत ज़्यादा use भी है, but आप लोगों को वो useful नहीं है in terms of automation guys. I don't think so. बाकी ज़्यादा आप लोगों को use होता है. हाँ, but current class के properties के लिए use करने के लिए guys, you need this keyword. आपको ये this keyword लगता है, ठीक है. We'll take this as well guys. थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल भी देखते हैं. इसी के साथ guys, there is one more keyword that is nothing but super keyword. जैसे this keyword है, this keyword की तरह ही एक और keyword आता है, that is nothing but the super keyword. So super keyword का काम क्या है guys? जैसे this keyword क्या करता है? Points to the current class properties. तो ये जो super keyword है guys, this super keyword guys, this super keyword specifically guys, super keyword points to the immediate parent class properties. आपके पास अगर आपके पास गाइस कोई पेरेंट क्लास है, जैसे हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं, तो पेरेंट क्लास कौन सा होता है? जिसके प्रॉपर्टीज इनहेरिट होते हैं इनटू द चाइल्ड क्लास. एम आई राइट एवरीवन? Yes. सो जनरली दिस कीवर्ड, अगर आप चाइल्ड क्लास में हो, अगर आप दिस कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो दिस कीवर्ड इज गोइंग टू पॉइंट टू द चाइल्ड क्लास ओनली, क्योंकि आप करंटली चाइल्ड क्लास में हो. बट आप अभी चाइल्ड क्लास में हो, और चाइल्ड क्लास से अगर आपको करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट नहीं करना है, बट आपको इस पर्टिकुलर क्लास का जो इमीडिएट पेरेंट क्लास है,
उस पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को अगर आपको पॉइंट करना है, यू आर गोइंग टू यूज द सुपर कीवर्ड। ये याद रहेगा? आरती, इंद्रेश सर, रविंद्र, अदर्स, दीपक, आदित्य, क्लियर है ये सबको? प्रिया, कि दिस कीवर्ड जो है, दिस कीवर्ड इज गोइंग टू पॉइंट टू द करंट क्लास प्रॉपर्टी, या आपके करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करता है, वेयर एज दिस सुपर कीवर्ड पॉइंट्स टू द इमीडिएट क्लास प्रॉपर्टीज, इमीडिएट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करेगा। लेट मी शो यू प्रैक्टिकली गाइस हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। सो लेट्स ओपन जावा टी पॉइंट एवरीवन। On the Java T point, we can go to the Java. Here we could be able to see this keyword. कहीं ना कहीं पे यहाँ पर this keyword दिख जाएगा. Okay, let me search for this. Okay, so guys, this one is ये link है हमारा this keyword का. All right, so this keyword is getting okay. So here guys, so this keyword का अगर आप देखोगे तो there are lot of uses, but this is a reference variable that prefers the current object, current class के properties को, current object को refer करता है guys. These are the actual uses of this keyword. This keyword can be used to refer current class instance variable, current class के instance variable को point कर सकता है. This class के guys, this keyword can be used to invoke current class method as well. current class के constructor को भी invoke कर सकता है. करंट क्लास में एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो करंट क्लास के मेथड में. दिस कैन बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू कंस्ट्रक्टर कॉल एज वेल. दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम मेथड एज वेल. ये भी आप लोग कर सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड. एग्जैक्टली इसका यूज क्या है गाइस? सी हियर गाइस, क्लास का नेम क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? क्लास नेम इज स्टूडेंट. ये क्या है फिर? ये स्टूडेंट जो है, इज दैट अ मेथड और इज दैट अ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर. दिस वन इज द कंस्ट्रक्टर, करेक्ट. अब इस कंस्ट्रक्टर में इंटीजर रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट फीस है. यहाँ पर क्लास के जो वेरिएबल्स है वो भी इंटीजर रोल नंबर है, स्ट्रिंग नेम है और फ्लोट फीस है. सो अगर यहाँ पर आप इस तरीके से लिखते हो, रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, नेम इक्वल्स टू नेम, फीस इक्वल्स टू फीस, जैसे हमने ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर किया था, उस केस में गाइस अगर आप इस प्रोग्राम को रन करने जाओगे तो यू विल गेट द नल आंसर्स, बिकॉज आपने ये जो करंट क्लास प्रॉपर्टीज है, करंट क्लास के प्रॉपर्टीज को पॉइंट करने के लिए यू हैव टू रेफर दिस कीवर्ड. तो अगर मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड लगाऊंगा गाइस, दिस डॉट ड्राइवर, याद आ रहा है आप लोगों को? एवरीवन, यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल इट. सो सेम वे गाइस हियर, अगर आप लोगों को करंट क्लास प्रॉपर्टीज को रेफर करना है, यू जस्ट नीड टू यूज दिस कीवर्ड. ये फर्स्ट क्लियर है गाइस सबको कि आप लोग करंट क्लास के वेरिएबल्स को पॉइंट कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल. और इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस होते हैं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस होते हैं? नॉन स्टैटिक, यस. सो कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सी चीज़ें होती है? जो भी वेरिएबल आप इनिशियलाइज करते हो थ्रू द कंस्ट्रक्टर, वो स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो कि नॉन स्टैटिक को? नॉन स्टैटिक. कंस्ट्रक्टर के थ्रू नॉन स्टैटिक एलिमेंट्स को. सो यस, सो हियर नॉन स्टैटिक एलिमेंट, इंस्टेंस वेरिएबल, या फिर सिंपल सा गाइस करंट क्लास के वेरिएबल्स को पॉइंट करने के लिए आप दिस कीवर्ड यूज करते हो. सेकेंडली गाइस, आई जस्ट गिव यू सिंपल सा एग्जांपल. ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव द यूज ऑफ दिस, हमें इसका ज़्यादा यूज नहीं है. सो गाइस सी इट ओवर हियर कि दिस कीवर्ड कैन इन्वोक करंट क्लास मेथड. दिस कीवर्ड करंट क्लास के मेथड को भी इन्वोक कर सकता है. जैसे कि गाइस ये क्लास ए है और क्लास ए में कौन सी मेथड है? दिस वन इज एम मेथड. और ये दूसरी कौन सी मेथड है? दिस इज दी एन मेथड. अभी इस एन मेथड का गाइस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, द ब्रैकेट इज गेटिंग स्टार्टेड हियर, और ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो रहा है, ये ब्रैकेट यहाँ पर एंड हो रहा है. तो अगर मुझे इस एन मेथड के अंदर अगर मुझे एम मेथड को कॉल करना है और दोनों मेथड एक ही क्लास को बिलोंग कर रही है, तो सिंपली मैं यूज करूंगा दिस डॉट एम. तो दिस कीवर्ड पॉइंट करेगा तो करंट क्लास में जो एम नाम की मेथड रहेगी, इन द करंट क्लास जो भी एम नाम की मेथड रहेगी उसको इन्वोक करेगा. जैसे कंस्ट्रक्टर गाइस वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए यूज किया था, इन अ सेम वे अगर आप लोग करंट क्लास में गाइस करंट क्लास में अगर किसी मेथड को कॉल करना चाहते हो तो आप दिस कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो.
यू गाइस कैन यूज दैट. जनरली हम लोग क्लास रेफरेंस के थ्रू कॉल करते हैं ना, a.m. am I right? guys? Yes. a dot class. So instead of giving the class name that is a के जगह पे this कीवर्ड यूज करो, this dot m, तो वो भी सेम काम करेगा. क्लियर? आरती, रविंद्र, इंद्रेश सर, दीपक, समझ रहा है ना ये? Yes, sir. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो दिस कीवर्ड है, दिस कीवर्ड विल पॉइंट्स टू द करंट क्लास प्रॉपर्टीज. तो ऐसे बहुत सारे यूजेस आप लोग कर सकते हो. यू गाइस कैन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस. अभी जैसे गाइस ये क्लास ए है, और अभी ये जो ए है ये कंस्ट्रक्टर है कि मेथड है? दिस वन Constructor. कंस्ट्रक्टर है, और ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर है अगेन. तो यहाँ पर आपने क्या किया? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अचीव किया. राइट. Yes. तो अगर मुझे इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर ये फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है, तो आई कैन यूज दिस के आगे कंस्ट्रक्टर का सिंबल लगा दूंगा मैं. सो दिस इज गोइंग टू इन्वोक करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्वोक कर देगा. ये भी यूज है, ऐसा भी यूज आप लोग कर सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू गाइज कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड. याद रहेगा गाइस सबको ये? तो आई एम नॉट टेकिंग दैट डिटेल. आप लोगों को ये 2-3 पॉइंट भी याद रहे तो भी, एक भी याद रहा तो भी बहुत है. क्लियर एवरीवन? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? एनी क्वेश्चंस? एनीवन? एनी क्वेश्चन गाइस? आरती? अगर 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं सेम नेम के तो हाँ, तो आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता ना अगर आपको. मतलब जैसे ये वाला क्लास दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था. राइट. कहाँ पे गया वो? दिस वन. राइट. या ये विथ आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है. करेक्ट. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. अगर इस वाले कंस्ट्रक्टर में आप कॉल करना चाहते हो तो ये वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करते टाइम आपको आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट वो डिसाइड करेगा कौन से कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है. गॉट इट? मतलब इस दिस कीवर्ड के अंदर आपको इंटीजर वैल्यू पास करना पड़ेगा. सो दैट वैल्यू विल match the proper constructor and accordingly the proper constructor will get invoked. Okay? Yes. Alright? जैसे मेथड ओवरलोडिंग किया था हमने, मेथड ओवरराइडिंग किया था, आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली पास किया था, वैसे ही करना है आपको यहाँ पर भी. ओके? सो गाइज दिस इज द यूज ऑफ योर दिस कीवर्ड. ये आपका दिस कीवर्ड है. इफ यू गाइज आर एबल टू डू द दिस कीवर्ड, उसके बाद देयर इज अ सुपर कीवर्ड. देयर इज अ सुपर कीवर्ड. अगेन this is also a important question सिंगल लाइनर आंसर के लिए गाइस, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव, कभी कभी किसी कंपनी का आपको एज एन एप्टीट्यूड देना पड़ता है, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि सुपर कीवर्ड का काम क्या है. सो सुपर कीवर्ड इन जावा इज रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज. सुपर कीवर्ड इज यूज्ड टू, गाइस सुपर कीवर्ड points to the immediate parent class properties. parent class के properties को वो point करेगा. okay? so let's get deeply into it कि exactly करेगा क्या. जैसे कि guys ये class है, class का नाम क्या है? class का name is animal. again we have a class का नाम क्या है यहाँ पे? dog. which is extending whom? which is extending एनिमल. मतलब ये वाला क्लास गाइज आपका सुपर क्लास हुआ, या फिर इमीडिएट पेरेंट क्लास हुआ, या आपका डॉग क्लास, आपका चाइल्ड क्लास हुआ. और सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज सारी की सारी एक्सटेंड कर दी, इनहेरिट कर दी अपने डॉग में. करेक्ट एवरीवन? मैं करेक्ट बोल रहा हूँ गाइस? नाउ Yes, sir. हियर अगर मुझे ये वाला कलर वेरिएबल है, नाउ सी ये कलर जो वेरिएबल है, ये कलर वेरिएबल जो है ये एनिमल क्लास में भी डिफाइंड है और डॉग क्लास में भी कलर अवेलेबल है. तो अगर आप system.out.println कलर करोगे तो ये कलर क्या करेगा? सिंपली जो करंट क्लास का कलर है ब्लैक कलर, इसको प्रिंट कर देगा. यहाँ पर ये ब्लैक कलर को प्रिंट कर देगा. बट इफ यू वांट टू रेफर टू दिस कलर जो कि इमीडिएट पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी है, इमीडिएट पेरेंट क्लास के वेरिएबल को अगर आपको पॉइंट करना है, यू कैन यूज, अभी दिस कीवर्ड के जगह पे आपको कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा? यू कैन यूज द सुपर कीवर्ड. सो सुपर कीवर्ड, यस, लेट मी फिनिश आरती, जस्ट अ मिनट. ये सुपर कीवर्ड क्या करेगा? ये सुपर कीवर्ड विल पॉइंट टू द कलर
बट कलर कौन सा वाला कलर विच बिलोंग्स टू द एनिमल क्लास, जो कि इसका इमीडिएट पेरेंट क्लास है गाइस। सुपर मतलब इसके इमीडिएट पेरेंट क्लास में जाएगा, इसमें जाके ढूंढेगा कि कलर नाम का कोई वेरिएबल का है क्या, हाँ कलर नाम का वेरिएबल है, उस केस में वो यहाँ पर कलर इज इक्वल्स टू वाइट प्रिंट कर देगा। ये सारथी बोलो। सुपर के जगह पे हम एनिमल डॉट कलर कर सकते हैं क्या? कर सकते थे बट ये हमने जैसे ट्राई किया था एक बार मॉक में, लेकिन हुआ नहीं था। आपने जब इनहेरिटेंस बताया था ना, तो बताया था, लेकिन तब हुआ नहीं। हाँ मैंने उसको आपको बोला था कि उसको हम लोग लेटर ऑन करेंगे। सो यस, आप एनिमल से तो कर ही सकते थे आरती, देयर इज नो डाउट, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द क्लास नेम, क्लास के जगह पे आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग द सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो सुपर कीवर्ड क्या करेगा? दिस विल पॉइंट टू द करंट क्लास प्रॉपर्टी, तो करंट क्लास के वेरिएबल को जाके वो कॉल कर देगा। यू गॉट इट? ओके, नाउ इसका और भी यूज है, जैसे कि क्या यूज है कि आप करंट जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है या फिर मेथड, ओके मेथड है यहाँ पे, करंट क्लास के मेथड को भी आप इन्वोक कर सकते हो। सो जैसे कि यहाँ पर क्लास एनिमल है, एनिमल के अंदर void eat करके मेथड है, दिस इज void eat मेथड जो कि पेरेंट क्लास में अवेलेबल है। दिस इज क्लास डॉग, ये आपका डॉग क्लास है जो कि चाइल्ड क्लास है, जिसमें एनिमल को आप एक्सटेंड कर रहे हो। एंड हियर आप लोग सारी एक्शंस कर रहे हो, और मुझे ये जो ईट मेथड है वो पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल करना है, तो मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो इसको कॉल कर ही सकता हूँ, राइट आरती? इसको कर ही सकता हूँ, Yes. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं डायरेक्टली अगर सुपर कीवर्ड बोलूंगा तो सुपर विल पॉइंट टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास, और उस पेरेंट क्लास में जाके इस मेथड को ढूंढ लेगा, एंड दिस विल कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड। गॉट इट? बट Yes. याद रखना गाइस, दिस सुपर कीवर्ड इज गोइंग टू पॉइंट टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास, और अगर पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में ईट नाम की मेथड है, यहाँ पर भी ईट नाम की मेथड थी और यहाँ पर भी ईट नाम की मेथड है, यहाँ पर भी ईट नाम की मेथड है, तो उस केस में सुपर कीवर्ड किसको पॉइंट करेगा? तो दैट इज गोइंग टू पॉइंट टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास। और अगर मैं दिस डॉट ईट करता तो ये चाइल्ड क्लास वाली ईट वाले मेथड को वो कॉल करता कि दैट डॉग इज ईटिंग ब्रेड, और यहाँ पर डॉग इज ईटिंग ऐसा कुछ आना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? नाउ जब आप मेथड को मेथड में ही कॉल करोगे, अगर आपको सुपर मतलब किसी मेथड को कॉल करना है तो मेथड हैज टू बी कॉल इनसाइड द मेथड ओनली, या आपका मेथड बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन? मेथड शुड बी कॉल्ड इनसाइड द मेथड बॉडी ओनली। एक मेथड दूसरे मेथड के बॉडी में ही कॉल होगा, बाहर नहीं कॉल होना चाहिए, आप लोग याद रखना। ओके एवरीवन? Yes. Now next thing, super keyword can be used to invoke parent class constructor as well। आप super keyword से parent class के properties में से parent class के constructor को भी invoke कर सकते हो। So this is class animal, ये animal आपका constructor हो गया गाइस इस केस में। यहाँ पर आपने इनहेरिटेंस अचीव किया, तो ये डॉग क्लास है, तो ये यहाँ पर डॉग जो है वो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का बॉडी इज गेटिंग स्टार्टेड ओवर हियर, यहाँ पर आपका बॉडी स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर अगर आप लोग सुपर कीवर्ड यूज करोगे, सुपर कीवर्ड के आगे गाइस पेरेंथेसिस लगाना, कंस्ट्रक्टर वाला पेरेंथेसिस लगाना, उस केस में ये सुपर कीवर्ड इज गोइंग टू एक्ट एज एन सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एंड इज गोइंग टू इन्वोक सुपर क्लास में जो भी कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है उस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करके देगा। क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है सबको? अगर आप इस केस में गाइस एक और लेट मी ट्राई टू शोकेस दिस वन, अगर इस सुपर कीवर्ड, ओके सो यहाँ पे मैं पहले रन करके दिखाता हूँ, ये रन हो रहा है राइट एवरीवन? एनिमल इज क्रिएटेड, डॉग इज क्रिएटेड, बट अगर मैं ये सुपर कीवर्ड को अगर कट कर देता हूँ यहाँ से, आई एम कटिंग इट एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही गाइस देखना, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है, फिर भी ये रन नहीं होगा, ये मुझे एरर दे देगा। एंड एरर क्यों दे रहा है गाइस? क्या रीजन है गाइस? कॉल टू सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। अगर आप लोग कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हो चाइल्ड क्लास में, सुपर क्लास के, या फिर किसी भी कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में इन्वोक कर रहे हो गाइस, तो ये कंस्ट्रक्टर कीवर्ड शुड बी द फर्स्ट कीवर्ड इनसाइड योर कंस्ट्रक्टर बॉडी। कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर वो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, तो ही वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। इज दैट क्लियर गाइस? एवरीवन क्लियर है सबको?
गाइस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट राइट कि नहीं समझा? आरती, यस समझा। इंद्रेश सर, आदर्श, दीपक, प्रिया, आदित्य, Ravindra, कुछ queries guys? So this is your super keyword and this keyword and final keyword. So these are again guys, these are important pointers. ये आपके important questions है in terms of interview. भले उसका 5% क्यों ना guys उसका importance हो, but the importance is importance. That's the reason I'm telling you, don't neglect even the 1% chance as well. I don't want you to neglect this one guys. ये आप लोग neglect ही मत करो. So I'm just giving you notes as well for that particular purpose. And if you want to do it guys, ये this keyword super keyword आप लोग करना चाहते हो तो just have a look on any website, Java Tea Point, W3 Schools, कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये resources मिल जाएगा. Alright everyone, so you can take a reference from here. You can take a reference from here. And guys, there are few keywords as well. जैसे ये final आपको पूछा जाता है. So और questions पूछा जाता है कि what is the difference in between final, finally and finalize. That we have to understand, but we won't be able to do that topic today. We'll do that tomorrow. But guys, ये जो final है, final is a keyword. Final is a keyword. Finally is a block and finalize is a method. ये तीन अलग अलग चीजें हैं. Final is a keyword. Final जावा में keyword है. फाइनली जावा में एक ब्लॉक होता है और फाइनलाइज जावा में एक मेथड होता है. सो लेट्स फिनिश गाइस दैट फाइनलाइज टुडे. आपको दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड में कुछ क्वेश्चंस है या फिर फाइनल कीवर्ड में एनीवन? एनी क्वेश्चंस? यस इंद्रेश सर कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर. Alright, so ये आपका this keyword हो गया, super keyword हो गया, final keyword हो गया. Guys, then we have a finalize. हमारा एक और टॉपिक बनता है that is finalize. तो this finalize, guys, finalize जावा के अंदर मेथड होता है. So guys ये ऑटो कैपिटलाइज हो जाता है. So you take care of this कि finalize is a method. Finalize is a method everyone. Finalize method. Final keyword है. Finalize method है. This is the biggest difference everyone. This is the biggest difference. Final keyword है, finalize method है और finally block है. Finally block हम लोग कल देखेंगे क्योंकि हमें पहले exception handling समझना है. जब आप exception handling समझोगे तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि finally block का importance क्या है और what is the use of finally block. Till then guys, मैं उस टॉपिक को कवर अप नहीं कर रहा हूँ. Let's discuss this finalize method. तो ये गाइस फाइनलाइज मेथड हम लोग कभी यूज नहीं करते. क्या हमने फाइनलाइज मेथड यूज किया है जावा में? नो. इतने दिन हम लोग जावा सीख रहे, कभी नहीं किया. बिकॉज ये फाइनलाइज मेथड जो है इसको जेडीके अपने आप कॉल करता है गाइस. ओके, लेट मी गूगल इट. फाइनलाइज्ड मेथड इन जावा. तो गाइस मैं डी लगा रहा था, फाइनलाइज है वो, सॉरी माय बैड. यहाँ पर भी मैं फाइनलाइज ही लिखा है मैंने. ओके, तो फाइनलाइज इज मेथड इन जावा. गाइस ये जनरली फाइनलाइज मेथड का काम क्या होता है कि फाइनलाइज मेथड का काम होता है ये गार्बेज कलेक्शन का. अभी गार्बेज कलेक्शन मतलब क्या होता है? जनरली हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं. तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी अलोकेट होगा कि नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी मस्ट बी अलोकेटेड, राइट? और वो अगर मेमोरी अलोकेट का अलोकेट ही रह गया तो गाइज हमारा पीसी, हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा. सो अल्टीमेटली जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है, जैसे ही प्रोग्राम स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है गाइज, तो जनरली मेमोरी में से जितने ऑब्जेक्ट है वो अनयूज्ड हो जाते हैं. वो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को मेमोरी में से रिमूव किया जाता है. हम नहीं करते, ये गार्बेज कलेक्टर करता है. गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज मतलब गई सिंपल सा, गार्बेज मीन्स विच इज नॉट इन करंटली यूज्ड. वो करंटली आपको यूज में नहीं है, उसको आप गार्बेज कर देते हो, राइट एवरीवन? जनरली आपको घर में कोई चीज अगर यूजफुल नहीं होती है तो आप उसको गाइस आपके गार्बेज बैग में डिस्प्लेस कर देते हो. एम आई राइट एवरीवन? इन अ सेम वे
जावा के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट अगर यूज नहीं होता है फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन टाइम या फिर पर्टिकुलर टाइम से यूज नहीं हो रहा है तो गाइज गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटेड कॉल होता है और गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट करंटली यूज में नहीं है उनको मेमोरी में से रिमूव कर देता है। तो ये जो फाइनलाइज मेथड है, दैट फाइनलाइज मेथड बिलोंग्स टू गार्बेज कलेक्शन, हमारा काम नहीं है गाइस, दैट इज द वर्क ऑफ जेडीके। ये ऑटोमेटेड कॉल होता है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, वो किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है या ऑटोमेटेड गार्बेज कलेक्ट कर लेता है। तो दैट टाइम गाइस सबका, सारे क्लासेस का गाइस, विच इज द सुपरमोस्ट क्लास, सुपरमोस्ट क्लास इज ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है गाइस, ऑब्जेक्ट ही आपका मेमोरी में से डिस्ट्रॉय करना होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रॉय करना है उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डॉट फाइनलाइज या फिर गाइस देयर इज वन जीसी करके आता है गाइस, जीसी ये जीसी इन जीसी मेथड इन जावा, दिस इज नथिंग बट गार्बेज कलेक्टर मेथड गाइस। ये जो गार्बेज कलेक्टर मेथड है, दिस गार्बेज कलेक्टर मेथड स्पेसिफिकली गाइस, गार्बेज कलेक्टर मेथड कॉल होता है और कॉल होने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो गार्बेज हो जाता है, मेमोरी में से रिमूव हो जाता है बाय यूजिंग फाइनलाइज मेथड। सो गाइस यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, फाइनलाइज मेथड इज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। कौन इसको कॉल करता है, हु इज गोइंग टू कॉल, गार्बेज कलेक्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट when garbage collection determines there are no more references to the object। मतलब करंटली जो ऑब्जेक्ट है इसको कोई रेफर नहीं कर रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है, मतलब वो गार्बेज कलेक्टेड है ऐसा डिटेक्ट हो गया, तब गार्बेज कलेक्टर इस फाइनलाइज मेथड को कॉल कर लेता है एंड ही इज गोइंग टू गाइज डू द क्लीन अप एक्टिविटी, आपके मेमोरी में से क्लीन अप एक्टिविटी करने का काम करेगा। क्लियर एवरीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ गार्बेज दिस फाइनलाइज मेथड एवरीवन? फाइनलाइज मेथड, क्या हम लोग फाइनलाइज मेथड को कॉल करते हैं क्या? No, we are not going to do the we are not going to call this finalize method। finalize method को JDK में garbage collector already defined है, the system is going to call this finalize method, we won't be able to call this method। ये clear रहेगा सबको everyone? ये याद रहेगा? This is again a important question, ये important interview question है guys, इसीलिए मैं सबसे end में ले रहा हूँ, अगर ये लेना चाहता मैं तो उसी टाइम पे ले लेता था। बट यू हैव सीन कि हमें ऑटोमेशन में ना ही फाइनल कीवर्ड ज़रूरी लगा, ना ही हमें कभी दिस कीवर्ड यूज़फुल रहा, ना ही हमें कभी सुपर कीवर्ड यूज़ पड़ा, ना ही कभी हमने फाइनलाइज मेथड को यूज़ किया है। वी डोंट रिक्वायर्ड दिस सच थिंग्स। हमें कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत पड़ती है, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत पड़ती है, उतना हम लोग अभी उतना हमने मैनेज कर लिया। अभी एंड में गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स द रीज़न वी आर डिस्कसिंग देम एट द एंड। Okay everyone, so I'll share these notes, if you have any queries you guys can ping me over the WhatsApp या फिर call कर लेना guys after 10 we can discuss this, or else before coming guys कल आने के बाद we'll take a 5 minute or a 10 minute discussion, आज की तरह lengthy discussion नहीं लेंगे, and there we will cover up all the queries। ठीक है everyone, alright।